reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. A few more of these. Did India just bomb Pakistan? It just happened 2 minutes ago. India launches missile attack on Pakistan. This is literally happening right now. India launches airstrikes deep inside Pakistan in a dramatic escalation of Indo-Pakistani tensions. Multiple explosions were reported in Pakistan-administered regions. The capital of Pakistani-administered Kashmir reported hearing several loud blasts throughout midnight. Pakistan launches second missile as Kashmir. So Pakistan launched a missile at India too. India, oh shit. Oh, so wait, they just did a press release about this too. Our actions have been focused and measured around non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and one Nepali citizen were murdered. We are living up to the commitment that those responsible for these attacks will be held accountable. Yeah, India and Pakistan has officially begun. Keep in mind, both sides have nukes. Let's see if there's a couple more videos. तेरा मस्ती खाली करवा ली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी? नहीं होगी। Usually a lot of these videos I'm like, oh okay, it's just gonna be like some far off noise, but like हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। you just see this shit happen. The first clear footage. Is this it? Pakistan says they will respond. Fights have been diverted inside of Pakistan. Pakistan threatens India with nuclear retaliation. When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीद के पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। क्या वो जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं और ये हमला कैसे प्लान किया गया, इसके बारे में डिटेल्स के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, अपना व्लॉग करते हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा के नाम से। रोहित शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thanks a lot for calling me on your show, ma'am. It's a nice show. मजा आता है, अच्छा लगता है आपके शोज देख करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। रोहित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये हमें देखें जो अब खबरें थी ना, कुछ इस तरह की थी कि अभी तो वहां पर ड्रिल स्टार्ट की गई, अनाउंस किया गया कि ये डिफेंस ड्रिल्स जो हैं उनको अनाउंस कर दिया गया। तो लगा ऐसे कि अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स हैं, डिफेंस सिविलियंस की जो होती है वो तरबियत होगी, कई दिन लगेंगे। तो क्या ये एक जिसे कहते हैं कि कुछ दिखाकर और कुछ कर देना, ये जो हमला है ये कितना बड़ा हमला भारत ने किया है, कहां कहां पर टारगेट किया है, और जो कहा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली टेरर कैंप्स पर हमला है, क्या हम इसको ऐसे ही ले? देखिए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है, और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो a little while ago the Indian armed forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted.
our actions have been focused, measured on non-escalating and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये अपने आप में बताती है कि इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए जहां पे टेररिस्ट थे। टारगेट्स कौन से थे? टारगेट्स को बात करें तो बहावलपुर सबसे दूर का टारगेट था 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, मुरीद के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, सवाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, बिलाल कैंप जिसका डिस्टेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहले वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सर्जल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड महमूना कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे पास डिटेल्स हैं, तो इससे ये पता लगता है कि एक वाइड रीजन में हुआ है। अगर आप बात करें तो कुछ पंजाब और राजस्थान के साथ हैं, तो कुछ उस साइड हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। एक वाइड रेंज में किया गया। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का वो था, तीनों का नेवी भी शामिल है इसके अंदर? नेवी भी शामिल थी, यही रिलीज में लिखा गया है, तीनों का था ये। तो तीनों का कैसे था अभी उसमें क्लैरिटी आएगी सुबह 10 बजे, यानी कि कुछ ही टाइम बाद ये होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, गवर्नमेंट इसमें क्लैरिटी और देगी। एक चीज और कि एयरफोर्स जो शामिल थी वो पता लग रही है कि एयरफोर्स ने एक ऑल्टीट्यूड पे जाकर के फिर मिसाइल्स मारी है। वो मिसाइल्स मारी है जो ग्लाइड करती हैं, यानी कि ग्लाइड करते हुए कोई इंजन नहीं होता, वो सिर्फ ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो उसमें इंजन नहीं होता तो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वो सुखोई और यूज तो सुखोई तो पक्का यूज किए गए हैं, साथ में राफेल भी यूज किया गया, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये बोला गया, लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी पायलट्स थे सारे हमारी निगाहों में हैं, सारे हमारे सामने। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया 9 साइट्स 9 टारगेट्स बता रहा है, जो आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ जो आपके प्लेन्स हैं या जो मिसाइल हैं वो मार गिराए गए। आप जो ये कह रहे हैं, मैंने ये भी खबर पढ़ी इंडिया की तरफ से कि सारे पायलट्स आपके महफूज हैं। तो अगर पायलट्स महफूज हैं तो फिर जो राफेल या जो भी गिराया गया है तो उसमें तो पायलट भी होना चाहिए ना? राइट। एक चीज कि पायलट, ये हो सकता है कि प्लेन गिर गया और पायलट इजेक्ट कर गया, तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेन अभी कितने गिरे हैं, कितने बचे हैं, ये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इस पे आ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पायलट्स हमारे सारे बच गए हैं, जो हमारे पास क्लैरिटी है मैं वही बता रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेन गिरे हैं जिनका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। J-17 एक बताया जा रहा है और एक F-16 बताया जा रहा है। इस पे भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने भी क्लैरिटी अभी दी है। दोनों के दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब हम बताएंगे। जितने भी पायलट्स और प्लेन्स की बात है, इस पर दोनों गवर्नमेंट्स अभी चुप है। DSPR कुछ जरा जल्दबाजी में थे, तो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। उन्होंने बोला था मिसाइल अटैक है। अच्छा, मिसाइल अटैक है तो प्लेन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं। हामिद मीर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फोटो दिखाई कि ये एक इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि वो 4 साल पुरानी फोटो उन्होंने ट्वीट की थी, मेक की थी। अभी तक हमारे पास ये नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ये जो देखें, ये ना, ये बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि वैसे तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जंग के हालात में वो इस तरह की चलती हैं खबरें और वो, लेकिन एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसी चीज पोस्ट कर दे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, फिर उसको भी होती है, बाकियों को भी होती है कि इतनी पुरानी आपने तस्वीर जो है पोस्ट क्यों की, किसी के कहने पर की, खुद से की। अच्छा, ये जो तस्वीर पोस्ट की, इसका मतलब है कोई नई तस्वीर उनको नहीं दी गई या नई तस्वीर उनको नहीं मिली हामिद मीर साहब को, तो ये उन्होंने गलती से पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। क्यों ड्रोन और जहाज गिराए हैं तो वो वाली तस्वीरें फिर आनी चाहिए थी, उनको शेयर करवानी चाहिए थी। मैं एक्चुअली उसमें होता क्या है कि
उस समय इतनी स्पीड से काम होता है, तो इंडिया तो एयरफोर्स तो अपना काम करके चलेगी, इतनी स्पीड से काम होता है कि किसी ने हामिद मीर को फोटो दी कि ये देखना जरा ये प्लेन है, और उन्होंने लगा दी, तो उन्होंने, उनके पास भी कंफर्मेशन के लिए टाइम नहीं रहा होगा, बट स्टिल वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आए तभी वो खबर डालें, तो ऑथेंटिक सोर्स से खबर आई होगी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट के पास ऑथेंटिक सोर्स से आई होगी, ऐसे तो उन्होंने ट्विटर से नहीं उठा ली होगी। तो इसका मतलब ऑथेंटिक सोर्स से जो आई है उसने गड़बड़ फैलाई है, उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा होता है, वो भी कहीं से ढूंढ के निकाल देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी शक कहां पैदा हुआ, मुझे कहां शक पैदा हुआ, बोला यह जा रहा था कि ये 2 प्लेन इंडिया के हैं, एक बताया जा रहा था राफेल और दूसरा बताया जा रहा था सुखोई। दोनों के दोनों प्लेन जो बताए जा रहे थे, एक बताया जा रहा था अखनूर में क्रैश हुआ है, दूसरा बताया जा रहा था बठिंडा में क्रैश हुआ है। अखनूर और बठिंडा दोनों इंडिया में, तो पाकिस्तान के पास फोटो कैसे आई? फोटो तो इंडिया के पास आनी चाहिए थी। तो इससे मुझे शक हुआ था, फिर बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि नहीं भाई ये सब झूठ है, ये सारी खबर गलत आ रही है। और लेकिन अभी भी देखते हैं, वेट एंड वॉच, वी स्टिल हैव टाइम। 10 बजे इंडिया टाइम पे आनी चाहिए एक प्रेस रिलीज, प्रेस ब्रीफिंग, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। लेकिन ये है कि सब अलर्ट पे हैं, हाई अलर्ट पे। पाकिस्तान, इंडिया की जो बॉर्डर की जितनी भी एयरपोर्ट्स हैं सारे खाली हैं, पाकिस्तान के ऊपर 48 घंटे नो फ्लाई जोन है, पाकिस्तान में पूरे में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मीटिंग बुलाई गई सुबह सिक्योरिटी काउंसिल की, क्या बोलते हैं उसको पाकिस्तान में, वो, और क्या बोलते हैं, हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडिया की भी हाई जी अलर्ट जी। पे है। अच्छा, अब आपको ये लगता है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है, क्या पाकिस्तान ने कोई अटैक किया है इंडिया पर? और क्या आपको लगता है कि अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है? देखिए, एक चीज तो पाकिस्तान ने खुद बोला कि हमने रिटेलिएशन किया है, और खुद बोलने के साथ साथ हमें वीडियो दिख रहा है कि एक JF-17 गिरता दिख रहा है, जो Audio Jungle.